Hello everyone, welcome to the today's session of the editorial. So let's begin with our class. So let me give you an overview that about the today's class. So in our today's class we'll be discussing the article. So here is your Hindi translation of the article. So if you are having any problem in understanding anything in English, you can read the Hindi translation and you can solve your doubt. Okay, so here is your first slide and here is your second slide, so you can pause the video and read it. Okay, apart from that we'll be discussing the vocabulary. Okay, then we'll discuss the article. So what makes this session unique is we will not will not be only discussing the article, but we will also focus on how we read the article. Okay, reading article and understanding is not enough, but apart from that, what additional thing required is how we read. Okay, you can see while I explain this article to you, I will connect this thing which I have marked in green color, and apart from that I have marked some words in the purple color. Okay, here also you can see the green thing. So I will connect these words and explain it to you, and whatever thing is marked in purple color, there we need to observe the grammar. So what's that rule of grammar will be observing there, I will tell you at the time of the explanation. Okay, and yeah, so here is the third slide. Here also we'll observe the grammar, some rules of the grammar. And yes, here also, so you can see on each and every page we will discuss we'll see the grammar. Okay, then here is the vocabulary test, then we'll do the 2 questions of error detection. So there is lot more things we'll be discussing in the article. Okay, so as you can see, the title of the article suggests that it's regarding the film, the Kerala story. Okay, so this is the poster of that film. ठीक है, तो ये पोस्टर है केरला स्टोरी का, you can see here. ठीक है, तो ये फिल्म 5 मई को रिलीज़ हो चुकी है. सो इसके ऊपर ही हमारा आज का आर्टिकल है. ठीक है, ओके. सो व्हाट डज द टाइटल सेज, क्या कहता है हमारा टाइटल. सो इट सेज कि मोर दैन अ स्टोरी. ठीक है, ये एक जो केरला स्टोरी है ये एक फिल्म से भी कुछ ज़्यादा है, एक स्टोरी से बहुत ही कुछ ज़्यादा बढ़ के कोई चीज़ है. ठीक है, ऑन द फिल्म द केरला स्टोरी एंड द डिमांड दैट इट बी बैन्ड. तो कौन सी चीज़ ये एक कहानी से आगे बढ़ चुकी है. ठीक है, जब तक ये फिल्म थी तब तक तो ठीक है, पर अब चीज़ें आगे बढ़ चुकी हैं किसके रिगार्डिंग, ये फिल्म के ऊपर, और इसके ऊपर जो प्रतिबंध की मांग आ रही है कि लोग कह रहे हैं कि आप इसे बैन कर दो, प्रतिबंध कर दो. तो इतनी ज़्यादा ये चीज़ एग्रीवेट हो गई है कि ये अब एक फ़िल्म की स्टोरी से ऊपर उठ के ये अब इस मुकाम पे आ चुकी है कि लोग इसे अब बैन करने के लिए कह रहे हैं. ठीक है, false narratives and propaganda should be exposed and countered but not through a ban. ठीक है, झूठी कहानियाँ और दुष्प्रचार. ठीक है, फॉल्स नरेटिव, प्रोपोगेंडा इज दुष्प्रचार. ठीक है, तो जो भी फॉल्स नरेटिव्स मतलब झूठी स्टोरीज़ को फैलाते हैं एंड जो भी दुष्प्रचार को फैलाते हैं उनका मुकाबला किया जाना चाहिए, लेकिन प्रतिबंध से नहीं. सो हियर ऑथर यहाँ पे क्या सजेशन दे रहे हैं, पूरे के पूरे आर्टिकल में उन्होंने यही कहा है कि ठीक है, अगर आपको फिल्म में ऐसे लग रहा है कि ये जो फैक्ट है या फिर कोई जो एक सीन है वो गलत दिखाया गया है, वो झूठा है वो, ठीक है, तो आप उसके लिए आप कहो, आप उसको करेक्ट करने के लिए कहो, पर उसे बैन कर देना उस चीज़ का सल्यूशन नहीं है. ठीक है, आगे कोई भी एक ऐसे फिल्म आएगी जिसमें कुछ झूठ दिखाया जाएगा, तो आप हर एक फिल्म को ऐसे थोड़ी ना कहते रहो कि बैन कर दो. नहीं, इस चीज़ का सल्यूशन यही है कि जो भी झूठ दिखाया गया है वो आप लोगों के सामने लाइए और फिल्म को बैन मत कीजिए. ठीक है, ओके. सो यहाँ पे आपका हिंदी ट्रांसलेशन है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो.
अब हम जाते हैं वोकैबलरी पे, ठीक है। इल कंसीव्ड, तो कोई भी चीज़ अगर इल कंसीव्ड है तो वो बैडली प्लान्ड है, बुरे तरीके से प्लान की गई है वो, या फिर वो बुरे तरीके से डिज़ाइन की गई है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ प्रोस्क्राइब, प्रोस्क्राइब करना इज़ बैन। देखो यहाँ पे स्पेलिंग का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे स्पेलिंग है PRO SCRIB, स्क्राइब, प्रोस्क्राइब मतलब बैन कर देना, ठीक है। एक वर्ड होता है आपका प्रिस्क्राइब, ठीक है, जिसकी स्पेलिंग होती है प्री से स्टार्ट होती है, ठीक है, SCRIBE, ठीक है। ये आपका प्रिस्क्राइब होता है, ठीक है। आपको डॉक्टर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, है ना, तो वो आपको कहते हैं कि आप ये लीजिए, ठीक है। वो वहाँ पे वो आपको अलाउ करते हैं कि आप ये लीजिए, अलाउ, दे अलाउ देयर, ठीक है। पर यहाँ पे प्रोस्क्राइब में क्या होता है, बैन होता है, तो प्रिस्क्राइब का एकदम अपोजिट है ये, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लैमर, क्लैमर का मतलब होता है टू डिमांड समथिंग इन अ लाउड और एंग्री वे, तो शोर शराबे में प्रोटेस्ट करना, कोई भी चीज़ का डिमांड करना बहुत ज़ोर शोर से, उसे कहते हैं क्लैमर। डिनाउंस करना, अगर कोई भी चीज़ को डिनाउंस किया जाता है तो उसका मतलब होता है टू से पब्लिकली समथिंग इज़ रॉन्ग, टू बी वेरी क्रिटिकल ऑफ अ पर्सन इन पब्लिक, तो उसके खिलाफ के भी किसी भी वस्तु या पर्सन के खिलाफ आप पब्लिकली कहते हो, बहुत स्ट्रांगली कहते हो कि हाँ ये चीज़ गलत है, तो आप उस चीज़ को डिनाउंस कर रहे हो। अनडिस्गाइज्ड का मतलब होता है क्लियरली शोन, नॉट हिडन फ्रॉम द पीपल। देखो डिस्गाइज का मतलब होता है छुपे हुए तरीके से, अनडिस्गाइज्ड, अन अगर वहाँ पे उसका प्रीफिक्स पे अन आ जाता है तो मतलब उस वर्ड का वो उल्टा हो जाता है, तो छुपे हुए का उल्टा क्या होता है, जो कि छुपा हुआ नहीं है, जो कि पूरा का पूरा क्लियर है, लोगों से ये बात छुपी नहीं है, ठीक है। तो उसका मतलब होता है अनडिस्गाइज्ड, ठीक है। स्टोक करने का मतलब होता है टू मेक पीपल फील समथिंग मोर स्ट्रांगली, तो यहाँ पे कोई चाहे कोई भी हो, स्ट्रॉन्ग इमोशंस को जगाना, चाहे वो अच्छे इमोशंस हो या फिर आप बुरे इमोशंस को भी जगाते हो, तो आप लोगों को स्टोक कर रहे हो, ठीक है। तो कोई भी स्ट्रॉन्ग इमोशंस को लोगों के अंदर जगाना इस स्टोक करना। अल्टीरियर मोटिव, मोटिव इज़ आपका छुपा हुआ, अल्टीरियर इज छुपा हुआ, मोटिव इज आपका वो एक उसके पीछे छुपा हुआ प्लान हम कह सकते हैं। मोटिव इज आपका प्लान, आपका आप क्या करना चाहते हो, एंड अल्टीरियर इज छुपा हुआ, तो छुपे हुए तरीके से आपका क्या प्लान है उसे हम कहते हैं अल्टीरियर मोटिव, जो आपका छुपा हुआ प्लान होता है। इफ़ यू से दैट समवन हैज़ एन अल्टीरियर मोटिव, मतलब किसी के पास अल्टीरियर मोटिव है, तो उसका मतलब होता है फॉर डूइंग समथिंग यू बिलीव दैट दे हैव अ हिडन रीज़न फॉर डूइंग इट, ठीक है। मोटिव इज वो आपके उसके करने के पीछे एक छुपा हुआ रीज़न है जो कि वो नहीं बता रहे हैं कि वो चीज़ क्यों कर रहे हैं, ठीक है। कंडेमनेबल का मतलब होता है ब्रिंगिंग और डिजर्विंग सीवियर रिब्यूक और सेंश्योर, कंडेम करना, क्रिटिसाइज करना, ठीक है। सेंश्योर इज़ रुकावट लाना, सेंश्योर करना इज़ बैन कर देना, ठीक है। तो बहुत स्ट्रांगली तरीके से हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो हम कंडेम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ बेहोव, बेहोव का मतलब होता है शोभा देना, सूट करना, वो चीज़ आपको शोभा देते हैं, हम कहते हैं ना ये चीज़ आपको सूट कर रही है, ठीक है। तो बेहोव का मतलब होता है शोभा देना, ठीक है। इट इज़ राइट फॉर समवन टू डू समथिंग, ठीक है, तो ये चीज़ आपको शोभा दे रही है, मतलब ये चीज़ आपको बिहेव कर रही है। रेडिकलाइजेशन का मतलब होता है द डायनामिक प्रोसेस वेयर बाय एन इंडिविजुअल कम्स टू एक्सेप्ट वायलेंट एक्सट्रीमिज्म, ठीक है। वायलेंट एक्सट्रीमिज्म इज़ लोगों के साथ बुरा बर्ताव करना, वायलेंटली बिहेव करना, इन शॉर्ट किसी टेररिस्ट एक्टिविटी से जुड़ जाना, ठीक है। डायनो वेयर बाय एन इंडिविजुअल कम्स टू एक्सेप्ट, जब एक इंडिविजुअल उस वायलेंट चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेता है, इन शॉर्ट टेररिस्ट के एक्टिविटीज़ को करने के लिए एक्सेप्ट कर देता है, तो उसका मतलब होता है वो रेडिकलाइज कर रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चीज़ व्रॉट, व्रॉट का मतलब होता है ब्रॉट इनटू बीइंग या मेड, ठीक है। उस चीज़ में, उस प्रेजेंट की स्थिति में उस चीज़ को लाना, ठीक है, या फिर उस चीज़ को करवाना इज़ व्रॉट करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका ओवरटर्न, ओवरटर्न कर देना इज़ पलट देना, ठीक है। कोई भी डिसीजन को कोर्ट्स ओवरटर्न कर देती हैं, ठीक है, जो डिसीजन आया होता है ओवरटर्न करने बिल्कुल उसके विपरीत कर देना, ठीक है। टू ऑफिशियली डिसाइड दैट अ डिसीजन इज़ रॉन्ग एंड चेंज इट, तो उस डिसीजन को पूरा चेंज कर देते हैं वो, ठीक है। यूजुअली ये उस सेंस में यूज़ होता है ओवरटर्न, बट जनरली मीनिंग होता है कि अब जो प्रेजेंट की चीज़ है आप उसे पूरा उसे उल्टा कर देते हो, ठीक है।
नेक्स्ट इज परपोर्ट. परपोर्ट का मतलब होता है टू गिव द इम्प्रेशन ऑफ बीइंग समथिंग और हैविंग डन समथिंग व्हेन दिस मे नॉट बी ट्रू. तो कोई भी चीज़ अगर सच नहीं है फिर भी आप ऐसा दिखाते हो कि हाँ वो चीज़ हो चुकी है और वो चीज़ सही है, तो आप उसे परपोर्ट कर रहे हो. ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने आर्टिकल पे. आर्टिकल पे अब हम पढ़ेंगे अपना. यहाँ पे सबसे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको कैसे पढ़ना है. ठीक है, अब ये द डिमांड है ना, ये किसके लिए लिखा है, आपको ऐसे पढ़ना है कि द डिमांड इज़ इल कंसीव्ड. ठीक है, यहाँ पे देखो आपका सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट हो रहा है. इज़ आपका हेल्पिंग वर्ब है, डिमांड आपका सब्जेक्ट है. तो इस सब्जेक्ट के लिए ये यहाँ पे इज़ लिखा हुआ है. ठीक है, तो आपको ऐसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखना है कि किस सब्जेक्ट के लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब आया हुआ है. जब आप इसे ऐसे कनेक्ट करके पढ़ोगे कि द डिमांड इज़ इल कंसीव्ड, तो आपको समझ में आएगा कि क्या चीज़ हो रही है. ठीक है, अब ये द डिमांड इज़ इल कंसीव्ड, तो कौन सी चीज़ है वो जो इल कंसीव्ड है. इल कंसीव्ड का मतलब मैंने आपको यहाँ पे समझाया था, बैडली प्लानड और डिज़ाइंड. ठीक है, मतलब कोई चीज़ सही नहीं है. तो कौन सी वो चीज़ है, कौन सी वो डिमांड है जो सही नहीं है, उन्होंने वो आपको यहाँ से दिया है. फॉर से लेके इस्लामिक स्टेट तक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बात है वो आपकी वो डिमांड है. कौन सी है वो डिमांड जो कि सही नहीं है. फॉर द बैन, द डिमांड फॉर द बैन ऑन द केरला स्टोरी. तो जो बैन की डिमांड है कि केरला स्टोरी जो मूवी है उस पर बैन लगाया जाए, वो जो डिमांड है ना वो इल कंसीव्ड है, वो सही नहीं है. बिकॉज ऑथर ने कहा है ना कि किसी भी फिल्म को बैन करना उसका सल्यूशन नहीं है. अगर आपको चीज़ कोई सही नहीं लगती है, आपको लगता है कि कोई गलत उसमें कुछ दिखाया गया है, तो आप उससे सामने लाइए लोगों के, पर उसे बैन मत करवाइए. ठीक है, अब फिल्म अपेरेंटली बेस्ड ऑन द अपेरेंटली मतलब अभी तो ऊपर ऊपर से ऐसा लग रहा है कि वो फिल्म किसके ऊपर बेस्ड है. इंस्टेंसेस ऑफ फ्यू वुमेन ज्वाइनिंग द इस्लामिक स्टेट. इंस्टेंसेस मतलब एग्जाम्पल, ऐसी घटनाएं. कौन सी घटनाएं, जो वुमेन है केरला की वो ज्वाइन कर रही हैं कुछ वुमेन्स इस्लामिक स्टेट को. ठीक है, अब इस्लामिक आईएस क्या है, एक टेररिस्ट ग्रुप है. ठीक है, तो ऐसा ऊपर ऊपर से अपेरेंटली लग रहा है कि केरला में जो कुछ महिलाएं हैं, थोड़ी बहुत महिलाएं हैं, वो सारी की सारी नहीं पर कुछ महिलाएं हैं जो कि ऐसी घटनाएं आई हैं कि वो इस्लामिक स्टेट को ज्वाइन कर रही हैं. ठीक है, तो ये डिमांड सही नहीं है, तो ये डिमांड इल कंसीव्ड है. ठीक है, तो अगर आप ऐसे पढ़ते थे द डिमांड फॉर अ बैन a Kerala story film apparently based on instances of few women joining Islamic State is ill conceived, तो आपको पता ही नहीं चलता था कि ये इस आखिर किसके लिए लगा है. तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो रहा था. ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई. ठीक है, इट इज़ टू द क्रेडिट. इट इज़ टू द क्रेडिट का मतलब इस बात का श्रेय किसको जाता है, किस बात का श्रेय कि ये बैन नहीं हुई है फिल्म, तो इस बात का श्रेय सुप्रीम कोर्ट को जाता है और हाई कोर्ट को जाता है, हाई कोर्ट ऑफ केरला एंड मद्रास को. तो सुप्रीम कोर्ट को और केरला के हाई कोर्ट को ये श्रेय जाता है कि दैट दे डिड नॉट ईल्ड द क्लैमर, डिड नॉट ईल्ड टू द क्लैमर. ठीक है, इफ़ नॉट ईल्ड टू. ठीक है, नॉट ईल्ड टू का मतलब होता है कि आप झुके नहीं हो उसके सामने. किसके सामने झुके नहीं हो, क्लैमर के सामने. तो जो ज़ोर शोर से, क्लैमर इज़ जो ज़ोर शोर से कोई अगर चीज़ बोली जाती है, तो ज़ोर शोर से जो प्रोटेस्ट हो रहा था कि इस फिल्म को बैन किया जाए, आप उसके सामने झुके नहीं. फॉर प्रोस्क्राइबिंग द मूवी, किसके लिए ज़ोर शोर से प्रोटेस्ट हो रहा था कि आप मूवी को प्रोस्क्राइब कर दो. प्रोस्क्राइब करना इज़ बैन करना, मैंने आपको समझाया था ना वोकैबुलरी में. तो ये जो क्लैमर था कि ये जो शोरगुल था कि मूवी को प्रोस्क्राइब कर दिया जाए, बैन कर, आप इसके ऊपर इसके सामने झुके नहीं. तो ये आपने बहुत ही सही किया, केरला और सुप्रीम हाई कोर्ट, आपने बहुत ही सही किया कि आप इसके सामने झुके नहीं. ठीक है, आपने ये सही डिसीजन लिया, ऐसा ऑथर ने कहा. ठीक है, इट गार्नर्ड. इट यहाँ पे अब किसके लिए देखो यूज़ हुआ है, ये इट ना केरला स्टोरी फिल्म के लिए यूज़ हुआ है, तो ये उस मूवी के लिए यूज़ हुआ है. तो केरला स्टोरी ने गार्नर किया. गार्नर करना इस कलेक्ट करना. ठीक है, तो क्या चीज़ मिली है, क्या कलेक्ट किया है केरला स्टोरी ने, एडवर्स पब्लिसिटी. एडवर्स इज नेगेटिव पब्लिसिटी मिली है, पब्लिसिटी इज़ प्रमोशन, तो नेगेटिव पब्लिसिटी मिली है केरला स्टोरी को. बिकॉज किसके लिए उन्हें नेगेटिव पब्लिसिटी मिल गई, बिकॉज ऑफ द टीज़र. टीज़र एक शॉर्ट वर्जन होता है ट्रेलर का भी. ठीक है, वो उसमें कुछ एक ऐसी सीन दिखाते हैं जिससे लोग टीज़ हो जाएं. टीज़ करना इस लोगों को उकसाना, तो वो मोटिवेट करती हैं आपको कि हम ये फ़िल्म देखें. तो ऐसी कोई सीन जो कि आपको मोटिवेट करे फ़िल्म देखने के लिए, तो वो होती है आपकी टीज़र. तो इसकी टीज़र में
जो एक क्लेम किया गया है, ठीक है, एडवर्स इफेक्ट बिकॉज ऑफ द टीज़र, तो इस टीज़र मेड एन एग्जैगरेटेड क्लेम, एग्जैगरेटेड इस बढ़ा चढ़ा के, तो इस टीज़र में एक बात कही गई है बढ़ा चढ़ा के कि कुछ 32,000 गर्ल्स हैव गॉन मिसिंग इन केरला, तो शायद कम होंगी 32,000 से, पर इन्होंने इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोला है कि हाँ देखो 32,000 लड़कियाँ खो गई हैं केरला में से इस इस्लामिक स्टेट को। प्रिज्यूमेबली ऊपर ऊपर से लग रहा है कि किस लिए वो चले गई हैं, किस लिए खो गई हैं, टू जॉइन द टेररिस्ट ग्रुप। तो ये जो इस्लामिक स्टेट है, टेररिस्ट ग्रुप है, इनसे इसको ज्वाइन करने के लिए वहाँ की महिलाएं चली गई हैं, तो ऐसा उस टीज़र में दिखाया गया था। तो इससे देख के लोगों को वहाँ पे आपत्ति हो गई कि आप ऐसे कैसे कह सकते हो, ठीक है। तो हाउएवर, हालांकि ठीक है, इन्होंने बैन करने के लिए तो कहा है, एडवर्स पब्लिसिटी मिल गई, पर हालांकि द फिल्म मेकर्स हैव एग्रीड टू विड्रॉ द टीज़र। तो फिल्म के जो मेकर्स हैं जिन्होंने फिल्म बनाई है, तो इन्होंने कहा, एग्री कर गए हैं। एग्री करना, एग्रीड टू का मतलब होता है अग्री टू, देखो अग्री के बाद हमेशा आपका टू होता है, यू अग्री टू समथिंग। तो ये लोग मान गए हैं, किस चीज़ के लिए मान गए हैं, विड्राव करने के लिए। विड्रॉ करना इस वापस ले लेना, ये लोग वापस ले लेंगे उस टीज़र को, एंड कैरी अ डिस्क्लेमर दैट द फिल्म्स कंटेंट इज़ फिक्शनल। ये लोग उस टीज़र को भी वापस ले लेंगे जिसमें ये कहा गया था ये बात को, और फिल्म का, और ये भी दिखा देंगे कि फिल्म का कंटेंट फिक्शनल है। देखो जब भी फिल्म स्टार्ट होती है तो एक डिस्क्लेमर, एक वार्निंग आती है ना कि इस चित्र में किए गए सारे जो भी पात्र हैं, जो भी सीन्स हैं, वो काल्पनिक हैं, सही सच नहीं है, बल्कि एक इमेजिनेशन है, और ना ही इस फिल्म में किसी भी प्राणी व्यक्ति को पीड़ित किया गया है, किसी को कोई हार्म नहीं किया गया है। तो इन्होंने ऐसी वार्निंग देने के लिए स्टार्ट कर दी। तो इन्होंने पहले इस फिल्म को ऐसा दिखाया था कि ये एक ट्रू स्टोरी है, ठीक है, सच्ची घटना पे घटित ये स्टोरी है, पर फिल्म मेकर्स ने अब इस प्रोटेस्ट के बाद, ये जो बैन की मांग थी, इसके बाद से उन्होंने अग्री कर लिया है कि ठीक है, हम ऐसा डिस्क्लेमर डाल देंगे कि ये फिक्शनल है, ठीक है। द फिल्म्स मोर नोटेबल फीचर इज़ दैट, तो इस फिल्म की खासियत और क्या हो गई है कि इट हैज़ बीन डिनाउंस्ड एज अनडिस्गाइज्ड प्रोपेगेंडा। तो इस फिल्म को क्या क्रिटिकली डिनाउंस करना, इस क्रिटिसाइज़ करना, पब्लिकली क्रिटिसाइज़ किया गया है कि ये एक अनडिस्गाइज्ड है। अनडिस्गाइज्ड इज खुलेआम ये एक प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, दुष्प्रचार, ठीक है, किसी के बारे में कुछ बुरा फैला रहे हैं। तो ये फिल्म ना खुलेआम लोगों के, किसी एक पर्टिकुलर कास्ट के बारे में ये ऐसे खराब बात कह रही है, ये फिल्म ये ऐसा कह रहे हैं। तो इस फिल्म को इसीलिए और ज़्यादा इस बात की खासियत बढ़ गई है। एक तो ये इस टीज़र में, पहली बात तो इस टीज़र के वजह से जिसमें ये कहा गया है, फिर इसमें एक ऐसी प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, इसीलिए भी ये फिल्म एक अलग से दिखाई दे रही है लोगों को, ठीक है। दोज सीकिंग द बैन एक्यूज, तो दोज सीकिंग द बैन, सीकिंग इज़ मांगना, तो जो लोग ये मांग कर रहे हैं कि इस फिल्म को बैन किया जाए, इट्स मेकर्स ऑफ ट्राइंग टू स्टोक एंड कम्युनल पैशंस, तो वो कह रहे हैं कि इस फिल्म के जो मेकर्स हैं, केरला स्टोरी मूवी के जो मेकर्स हैं, वो ट्राई कर रहे हैं टू स्टोक करना, जगाना, बहुत स्ट्रांगली जगाना। तो इस फिल्म के जो मेकर्स हैं वो स्ट्रांगली क्या जगाना चाह रहे हैं, कम्युनल पैशंस को। कम्युनल पैशन इज जो किसी भी दो रिलीजन्स के बीच में जो कि एक तनावपूर्ण स्थिति पैदा करे, तो ऐसी चीज़ों को, ऐसे इमोशंस को ये फिल्म जगाने की कोशिश कर रही है, इसीलिए हम लोग बैन कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि इस फिल्म को बैन कर दिया जाए। एंड द प्रोजेक्टिंग ऑफ द फेक नरेटिव अगेंस्ट द मुस्लिम्स, ठीक है, फेक नरेटिव स्टोरी, तो मुस्लिम्स के रिगार्डिंग एक फेक स्टोरी दिखाई दे रही है इस फिल्म में, इसलिए हम चाहते हैं कि इस फिल्म को बैन कर दिया जाए, ठीक है। हाउएवर इवन इफ़ दैट इज़ ट्रू, तो ऑथर कह रहे हैं ठीक है, आप कह रहे हो कि इसमें झूठी बात दिखाई जा रही है, ठीक है, हम मान भी लेते हैं कि इस फिल्म में झूठी बात दिखाई जा रही है, पर एनी बैन ऑन द फिल्म विल बी काउंटर प्रोडक्टिव, ठीक है। काउंटर प्रोडक्टिव का मतलब, देखो प्रोडक्टिव का मतलब होता है जो चीज़ आपको फल दे,
काउंटर, अगर वो चीज़ आपको काउंटर कर रही है मतलब वो आपको वैसा रिजल्ट नहीं देगी। काउंटर प्रोडक्टिविस्ट वो आपको बिल्कुल विपरीत रिजल्ट देगी। अगर आप फिल्म को बैन कर दोगे ना, बैन ऑन द फिल्म, तो अगर आप फिल्म को बैन भी कर दोगे तो आपको वो उल्टा रिजल्ट देगी। कैसे उल्टे रिजल्ट देगी हम आगे पढ़ रहे हैं, ठीक है। बैन्स कैन बी ओवरटर्न बाय कोर्ट्स, ठीक है। देखो आप कहोगे कि बैन कर दो, अभी आप कहोगे कि बैन कर दो, फिर इस फिल्म के जो मेकर्स हैं ना वो कोर्ट में जाएंगे, वो कहेंगे, वो सारे अपने प्रूफ्स रखेंगे कि देखो ये सही बात है, हमने इसलिए किया। फिर अगर कोर्ट को सही लगेगा कि हाँ ये फिल्म मेकर सही कह रहे हैं तो इस बैन को हटा भी सकते हैं। ओवरटर्न करना इस पूरा उस डिसीजन को चेंज कर देना। तो कोर्ट में अगर ये चीज़ जाती है, फिल्म मेकर सही प्रूफ कर देते हैं और कोर्ट को सही लगता है तो कोर्ट इस बैन को हटा भी सकती है, ठीक है। तो बैन करने का फ़ायदा ही क्या हुआ। एंड दे टेंड टू इवोक क्यूरोसिटी अबाउट द फिल्म एंड, और इस ऐसी सब चीज़ों को क्रिएट करके ना जो फिल्म मेकर्स हैं वो टेंड टू मतलब वो ऐसा करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, इवोक करना इस जगाना। तो लोगों में वो क्यूरोसिटी को और क्यूरोसिटी जगा देंगे अबाउट द फिल्म के बारे में, और क्यूरोसिटी जगा देंगे कि हाँ भाई ऐसी क्या वो नरेटिव है, कैसी क्या चीज़ है उस फिल्म में दिखाई गई है, हम भी तो देखें, जिसको कह के लोग कह रहे हैं कि हाँ इसे बैन कर दो, हम भी देखना चाहेंगे वो फिल्म। तो ऐसे सब सिचुएशन को क्रिएट करके शायद फिल्म मेकर्स लोगों में क्यूरोसिटी जगाना चाहते हो, ठीक है। एंड ऑफन एंड अप मेकिंग, ठीक है, यू एंड अप डूइंग समथिंग, ठीक है। तो एंड अप के बाद आपका V1 प्लस ING आता है, तो वो आपको रूल देखना था ग्रामर का। तो मेकिंग आपका ING फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो एंड अप मेकिंग समथिंग इज आप वो करते हुए किसी चीज़ को ख़त्म करते हो, ठीक है। तो वो एंड अप मेकिंग मोर पीपल फॉर्म ओपिनियंस ऑन इट्स कंटेंट। तो आप बैन से क्या चीज़ एंड अप होगी, बैन से किस चीज़ का एक रिजल्ट आ जाएगा कि लोग इससे और भी ज़्यादा इस पे बात करना चाहेंगे, ठीक है। लोगों में और क्यूरोसिटी जग जाएगी कि हम भी देखें आखिर क्या बात हुई है, और लोग इस पे अपनी धारणाएं बनाना स्टार्ट कर देंगे। ओपिनियन मतलब धारणा बना देना, इसके बारे में बात कर देना, इसके बारे में और ज़्यादा लोग बातचीत करना स्टार्ट कर देंगे, और बातचीत करेंगे तो लोगों को और पता चलेगा इस फिल्म के बारे में, तो और पब्लिसिटी हो जाएगी, ठीक है। इन इफेक्ट तो इसके इफेक्ट में क्या होगा, इट एनहांसेस द प्रोपेगेंडा वैल्यू। तो इससे क्या होगा, जो दुष्प्रचार उस फिल्म में दिखाया गया है, सपोज़ अगर दिखाया भी गया है तो वो और ज़्यादा लोगों में फैलेगा, क्योंकि तो लोग और ज़्यादा बात करेंगे तो लोग और ज़्यादा जाके देखेंगे। एंड फर्दर्स द अल्टीरियर मोटिव इफ एनी, और फर्दर्स मतलब आगे बढ़ाएगा, किस चीज़ को वो आगे बढ़ाएगा, किस चीज़ को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करेगा। यहाँ पे फर्दर्स का मतलब है स्ट्रेंथन, और ज़्यादा सपोर्ट करेगा, और ज़्यादा बढ़ाएगा। किस चीज़ को बढ़ा देगा, अल्टीरियर मोटिव। तो कोई अगर सपोज़ छुपा हुआ मोटिव है कि देखो फिल्म मेकर्स का ऐसा हो सकता है ना कि हम ऐसा कुछ टीज़र दिखा देंगे, लोग इसके ऊपर बात करना स्टार्ट कर देंगे, फिर हम लोगों तक, कई सारे लोगों तक ये फिल्म पहुंच जाएगी और हमारा कलेक्शन अच्छी हो जाएगी मूवी की। ये मोटिव भी हो सकता है ना। तो और ज़्यादा उस मोटिव को ये बढ़ावा देगा अगर हम बैन कर देंगे तो, ठीक है। इट इज़ नाउ लीगली सेटल्ड, तो ये बात लीगली मतलब कोर्ट में से ये प्रूफ, अभी कोर्ट का डिसीजन आ गया है कि कोई भी अगर चीज़ लीगली है तो वो कानूनी तौर पे बात ली गई है, सेटल कर दी गई है कि दैट वंस अ फिल्म हैज़ बीन सर्टिफाइड बाय द स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। तो अगर एक बार फिल्म रिलीज़ होने से पहले वो सर्टिफाई की जा चुकी है, मतलब चेक की जा चुकी है, किनके द्वारा, स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ जो फिल्म्स के ऊपर जो सेंसरशिप बोर्ड होता है, जो चेक करते हैं कि ये फिल्म सही है कि नहीं, इसमें कुछ गलत दिखाया है कि नहीं। तो वो बोर्ड, वो अथॉरिटी अगर इसको सर्टिफाई कर देती है तो उसके बाद से क्या चीज़ हो सकती है, देयर इज़ नो रियली केस टू बैन द वन। तो उसके बाद से तो कोई भी बात ही नहीं होती है कि हम बैन करें। अगर उन्होंने सही कहा है तो सारी की सारी चीज़ें चेक करके ही उन्होंने कुछ कहा होगा, तो इसके बाद से तो बैन करने का सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। अब ये लॉज ना आपका एम्पावर के लिए लिखा है,
ठीक है, तो लॉज क्या एम्पावर करते हैं, किसको एम्पावर करते हैं, तो लॉज एम्पावर द पुलिस एंड लोकल अथॉरिटीज़ टू स्टॉप अ फिल्म्स स्क्रीनिंग। तो जो लॉज हैं, हमारे कानून हैं हमारे इंडिया के, तो वो एम्पावर करते हैं इस अथॉरिटी देते हैं किसको, पुलिस को और लोकल अथॉरिटीज़ को, कि वो रोक दें फिल्म के स्क्रीनिंग को। तो जो पिक्चर में दिखाए, जो थिएटर्स में पिक्चर दिखाई जाती है उसे स्क्रीनिंग कहना, स्क्रीनिंग करना कहते हैं। तो लॉज परटेनिंग टू पब्लिक ऑर्डर, परटेनिंग मतलब रिलेटेड टू, तो जो भी कानून है पब्लिक ऑर्डर इज़ लोगों को संभालना, लोगों को मैनेज करना, लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज करना। तो उससे रिलेटेड जो भी लॉज हैं वो पुलिस को अथॉरिटी देते हैं, ऐसा पावर देते हैं कि वो लोगों के हित के लिए, ताकि कोई भी झगड़े दंगे फसाद ना हो, तो वो उस फिल्म को बैन कर सकते हैं, रोक सकते हैं। उस पर्टिकुलर शहर में, उस एरिया में वो उस फिल्म को रोक सकते हैं। पर इट विल बी पेरिलियस टू डू सो, पर ये पेरिलियस मतलब डेंजरस हो जाएगा। आप बैन कर दोगे तो वो डेंजरस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सो एवरी टाइम अ ग्रुप डिमांड्स अ बैन, तो क्या होगा फिर, एवरी टाइम हर बार कोई ना कोई एक फिल्म आएगी, उसमें कुछ ना कुछ दिखाया जाएगा। आज एक किसी पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में दिखाया गया है, कल किसी और रिलीजन के बारे में दिखाया जाएगा, फिर तीसरी फिल्म में किसी और रिलीजन के बारे में दिखाया जाएगा। तो हर रोज़ ऐसे प्रोटेस्ट होंगे, तो हर रोज़ आप थोड़ी ना हर एक फिल्म को बैन करते फिरोगे। ठीक है, इसलिए वो डेंजरस हो जाएगा। ठीक है, फिर लोग कहेंगे ना कि देखो भाई, आपने उस फिल्म को तो बैन कर दिया, अब आप इस फिल्म को क्यों नहीं बैन कर रहे हो। तो ये बात तो बहुत ही डेंजरस हो जाएगी। तो बैन करना इज़ नॉट द सोल्यूशन। ठीक है, रिपोर्ट्स फ्रॉम तमिलनाडु एंड केरला, तो रिपोर्ट्स आई हैं तमिलनाडु और केरला से, वो सजेस्ट करती हैं, सजेस्ट मतलब वो दिखाती हैं, वो बताती हैं कि दैट थ्रेट्स ऑफ प्रोटेस्ट हैव रिजल्टेड, जो 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 डर था प्रोटेस्ट का, उससे क्या हुआ है, उससे क्या रिजल्ट हुआ है, उसके क्या कॉन्सिक्वेंस हुए हैं, इन मल्टीप्लेक्सेस एंड सम सिनेमा ओनर्स चूजिंग नॉट टू स्क्रीन द फिल्म। तो जो सिनेमा ओनर्स और मल्टीप्लेक्स के ओनर्स हैं, उन्होंने डिसाइड किया है कि वो फिल्म को स्क्रीन नहीं करेंगे मतलब फिल्म को अपने थिएटर्स में वो नहीं दिखाएंगे। ठीक है, इट इज़ नॉर्मली द लोकल अथॉरिटीज़ हु हैव अ ड्यूटी टू प्रोवाइड एडिक्वेट सिक्योरिटी। तो लोकल अथॉरिटीज़ मतलब वहाँ के उस शहर की, जहाँ पे भी ऐसा लग रहा है कि प्रोटेस्ट हो सकते हैं, तो ये ड्यूटी बनती है वहाँ के उस एरिया के पुलिस की कि वो इन्हें सिक्योरिटी दे, थिएटर के ओनर्स को, थिएटर मल्टीप्लेक्स के ओनर्स को वो सिक्योरिटी दे, एज रूल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि जिस भी एरिया में ऐसा कुछ होता है तो उस एरिया के पुलिस की वो जिम्मेदारी होती है और वहाँ के लोकल अथॉरिटी की। ठीक है, मतलब वहाँ के जो भी म्यूनसिपल हेड हैं, कॉरपोरेशन के जो हेड हैं पुलिस की, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो सिक्योरिटी दें। हाउएवर मतलब पर, ठीक है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है, पर रादर दैन द लॉ, पर ठीक है, हम लॉ को एक साइड पे रखें एक कुछ क्षणों के लिए, तो इट इज़ प्रूडेंट मतलब वाइज। ठीक है, तो बहुत ही सही डिसीजन होगा, प्रूडेंट इज़ बहुत ही वाइज, अच्छा डिसीजन होगा कि आप असेस करें, मतलब कैलकुलेट करें ऑफ द ग्राउंड सिचुएशन। तो आप ग्राउंड सिचुएशन को खुद से असेस कर लें कि हाँ ठीक है, अगर हमें लग रहा है कि हमारे एरिया में दंगे फसाद हो सकते हैं इस फिल्म को दिखाने से, तो ठीक है, आप ग्राउंड सिचुएशन को कैलकुलेट करो, असेस करो, और सही बात है कि आप नहीं दिखा रहे हो। पुलिस तो देगी ही प्रोटेक्शन, पर उसके बाद भी क्या पता अनकंट्रोल सा हो जाए चीज़ें। तो इससे बेटर है कि हाँ, आप खुद ही असेस करो और खुद से ही ये डिसीजन लो कि हमें दिखाना है या नहीं। ठीक है, तो वो असेसमेंट, तो ये हेल्प्स किसके लिए लगा है, इस असेसमेंट के लिए। तो जब ये आप असेस करोगे, ये एग्ज़ामिन करोगे कि हमारा कितना सही है इस फिल्म को दिखाना, तो ये चीज़ आपको हेल्प करेगी, ये असेसमेंट आपको हेल्प करेगी। हेल्प देम मेक, देखो हेल्प के बाद आपका रूल है कि वीवन आएगा। ठीक है, हेल्प के बाद हमेशा आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। ठीक है, ये ग्रामर का रूल है, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपका पर्पल कलर में मार्क किया है। तो ये असेसमेंट आपको हेल्प करेगी किस चीज़ में, मेक अ डिसीजन। तो डिसीजन करने में आपको हेल्प करेगी कि हमें फिल्म को दिखाना है या नहीं। ठीक है, व्हाट इज़ ऑल्सो कंडेमनेबल, तो और भी चीज़ क्रिटिसाइज़ करने के लिए एक चीज़ है, कौन सी है वो चीज़ इज़
द अटेम्प्ट टू मेक पॉलिटिकल एंड इलेक्टोरल कैपिटल आउट ऑफ द केरला स्टोरी। ठीक है, पॉलिटिकल और इलेक्टोरल कैपिटल मतलब कैपिटल यहाँ पे एडवांटेज का मतलब होता है। तो द केरला स्टोरी इस मूवी से अगर आप पॉलिटिकल एडवांटेज और अपना इलेक्टोरल मतलब पॉलिटिकल एंड इलेक्टोरल आप अपने पॉलिटिक्स में इस मूवी का जो ये प्रॉब्लम चल रहा है इस इशू को आप अगर पॉलिटिकली अपने इलेक्शन में यूज़ करोगे, कहोगे कि देखो भाई इस ग्रुप को देखो कैसे अलग कर दिया जा रहा है, या फिर कुछ लोग कहेंगे कि देखो ये लोग कैसे गवर्नमेंट भी इन्हें सपोर्ट कर रही है, तो पॉलिटिक्स को इस चीज़ में लाना बहुत ही गलत बात है। कंडेमनेबल इज़ गलत बात, ठीक है, क्रिटिसाइज करने लायक है। द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ, देखो हिमसेल्फ यहाँ पे क्यों पर्पल में है, ये एक हिमसेल्फ, ठीक है, आर सेल्फ, देमसेल्फ, ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसके लिए यूज़ होते हैं, किसी भी चीज़ को स्ट्रेस दे के कहने के लिए अगर आपको कुछ कहना होता है तब आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज़ करते हो। तो यहाँ पे स्ट्रेस देने के लिए कहा गया है कि द प्राइम मिनिस्टर, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर उन्होंने खुद ने हिमसेल्फ इज, देखो उन्होंने खुद ने ही कहा है, हैज़ एलिज्ड, उन्होंने ऐसे एलिज इसे इल्ज़ाम लगाया है, कथित तौर पे कहा है कि दैट ओनली दोज हु सपोर्ट टेररिज्म विल क्रिटिसाइज सच अ मूवी। उन्होंने कहा है कि जो भी इस मूवी को क्रिटिसाइज करेंगे उसका मतलब है कि वो टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा पीएम ने कहा है। ठीक है, इट डज नॉट बिहोव इज शोभा देना, तो ये बात शोभा नहीं देती है कि हाई कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज टू कम्युनलाइज द डिबेट ओवर द फिल्म। तो ये बात शोभा नहीं देती है कि जो ऐसे हाई कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज हैं, हाई कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी जिन्होंने तो जिनका कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जिनका पद बहुत ही ऊंचा है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, गवर्नर्स हो गए, ठीक है, चीफ मिनिस्टर्स हो गए, तो कोई भी ऐसा बड़ा व्यक्ति जिनको कॉन्स्टिट्यूशन ने एक बड़ा ओहदा दिया है, वो लोग इस फिल्म के ऊपर डिबेट करें, ऐसी उनको शोभा नहीं देती है वो बात। पिछले सेंटेंस में हमने पढ़ा ना कि प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा कहा है कि जो भी इस फिल्म को सपोर्ट नहीं कर, जो भी इस फिल्म को सपोर्ट नहीं क्रिटिसाइज़ करेगा वो उसका मतलब होगा कि वो टेररिज्म को, तो उसके लिए ही ये बात कही गई है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन से जिनको ऐसा ऊंचे ओहदे पर हैं तो ये उनको शोभा नहीं देती है, बिहोव नहीं करती है ये बात कि वो कोई भी ऐसे फिल्म की बात को अपने पॉलिटिकल डिबेट्स में लाएं। ठीक है, फिल्म को, इस स्टोरी को, इसके इशू को आप अलग ही रहिए, इसे पॉलिटिक्स में ना लाइए, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, तो कोई भी नेता इसको आप पॉलिटिक्स में ना लाइए, ठीक है, तो चाहे वो कोई भी, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, आप कोई भी इसको पॉलिटिक्स में मत लाइए, ऐसा ऑथर कह रहे हैं। ठीक है, प्रोटेस्ट अगेंस्ट एन एलिजिडली फॉल्स नरेटिव, तो प्रोटेस्ट करते हैं अगर हम, किसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं, एलिजिडली फॉल्स नरेटिव, तो झूठी स्टोरी या फिर कोई झूठा फैक्ट, नरेटिव स्टोरी, तो कोई भी अगर एक झूठी स्टोरी दिखाई जाती है उसके खिलाफ अगर कोई प्रोटेस्ट करता है अबाउट अ स्टेट और कम्युनिटी, तो स्टेट और कम्युनिटी के, किसी स्टेट के ऊपर या फिर किसी कम्युनिटी के ऊपर अगर कोई झूठी बात कह रही है, कोई कह रहा है, कुछ पिक्चर में, कोई फिल्म में दिखाया जा रहा है, अगर हम उससे प्रोटेस्ट करते हैं तो दैट विल नॉट अमाउंट टू का मतलब होता है इक्विवेलेंट टू। ठीक है, तो ये उसके इक्विवेलेंट नहीं होगा कि हम इज़ नॉट अमाउंट टू बैकिंग टेररिज्म। देखो अमाउंट टू के बाद आपका V1 प्लस ING आता है, ये आपका ग्रामर का रूल है। ठीक है, मैंने इसलिए यहाँ पे पर्पल में मार्क किया है। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को अगर कोई झूठी चीज़ दिखा रहा है, हम उसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि हम टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अमाउंट टू इज़ इक्विवेलेंट टू, तो हम उसका मतलब ये नहीं है कि हम टेररिज्म को बैक कर रहे हैं, बैक करना इज सपोर्ट करना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, हम सिर्फ उस झूठे कहे गए फैक्ट को प्रोटेस्ट कर रहे हैं। द फियर दैट द फिल्म परपोर्टेडली ग्रैपल्स, परपोर्टेडली मतलब जो दिखाया जा रहा है फिल्म में ऊपर से कि, और जो फिल्म जूझा जा रहा है, इस फिल्म में ग्रैपल करना इस जूझना, तो इस फिल्म में किस डर से ये फिल्म में जूझा जा रहा है कि विथ द यंग पीपल
मे बी टारगेटेड फॉर रेडिकलाइजेशन। रेडिकलाइजेशन मैंने कहा ना कि यूथ एक्सेप्ट कर लेते हैं वायलेंट एक्टिविटीज़ को करने के लिए, टेररिज्म एक्टिविटीज़ को करने के लिए। तो इस फिल्म में ये दिखाया जा रहा है कि हमारे इंडिया के यूथ को ना, यंग पीपल को ईजीली टारगेट किया जा रहा है रेडिकलाइजेशन करने के लिए। तो ऐसे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में ईजीली यूथ को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। इस फिल्म में यही दिखाया गया है। ठीक है, हमने पढ़ा था ना कि कुछ वुमेन्स मिसिंग हो रही हैं इस्लामिक स्टेट को ज्वाइन करने के लिए। तो इस फिल्म में एक ऐसा डर दिखाया गया है कि हमारे इंडियन यूथ को ईजिली इन्फ्लुएंस किया जा रहा है और उन्हें रेडिकलाइजेशन, ऐसे वायलेंट एक्टिविटीज़ में लाया जा रहा है। इस फिल्म का मोटिव ये है कि हमें इस फिल्म का मोटिव यही है कि यही दिखाना है कि कैसे यूथ के ऊपर अटैक हुआ है। तो शुड बी, तो ये जो रेडिकलाइजेशन हो रहा है, ये जो डर है, ये शुड बी किसके लिए रखा है? इस डर के लिए। तो इस फिल्म में ये जो डर दिखाया गया है कि यूथ रेडिकलाइज हो रहे हैं, तो इस डर को एड्रेस किया जाए। एड्रेस करना इज सॉल्व करना, फेस करना। ठीक है, तो इसे एड्रेस किया जाना चाहिए। किससे एड्रेस किया जाना चाहिए? बाय आइसोलेटिंग द एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स। आइसोलेट करना इज बंद कर देना, एक किसी भी जगह पे आइसोलेट हो जाना। तो किस चीज़ को बंद करना है? एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स। एक्सट्रीमिस्ट जो ये वायलेंट एलिमेंट्स हैं ना, जो भी समाज में ऐसी वायलेंट चीज़ों को फैला रहे हैं, आप उन्हें बंद कर दो पहले तो। ठीक है, किसी भी चीज़ का सल्यूशन वायलेंस फैलाना नहीं होता है। तो जो भी लोग ऐसे वायलेंस को फैला रहे हैं, पहले तो उन्हें आइसोलेट कर दो एंड फॉस्टर करो। फॉस्टर करना इस बढ़ाना। अगर आप कोई भी चीज़ को फॉस्टर कर रहे हो तो आप उसे डेवलप कर रहे हो, नरिश कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। तो हमें किस चीज़ को बढ़ाना है? बेटर अंडरस्टैंडिंग अमंग कम्युनिटीज़। अंडरस्टैंडिंग, हमारे आपसी बीच की जो समझ है कम्युनिटीज़ के बीच में, जो भी इंडिया में कम्युनिटीज़ हैं उनके बीच में आपसी समझ को बढ़ाना है। और ऐसे लोग जो वायलेंस फैला रहे हैं उन्हें बंद कर देना है, उन्हें रोकना है। बंद कर देना इज़ रोकना। तो हमें खुद से ये समझ करनी होगी, हमें खुद से हमारे कम्युनिटीज़ में ऐसी समझ लानी होगी कि चाहे कुछ भी लोग कहेंगे, ठीक है, आए दिन सोशल मीडिया पे कुछ भी आ जाएगा, पिक्चरों में कुछ भी दिखाया जाएगा, पर हमें उससे इफ़ेक्ट नहीं होना है। ठीक है, तो ऐसा ऑथर कह रहे हैं। तो इस ऑथर सल्यूशन दे रहे हैं। ठीक है, तो जो ये प्रॉब्लम दिखाया गया है फिल्म में कि इंडिया के यूथ इजीली रेडिकलाइज किए जा रहे हैं, तो इस डर को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? पहले तो जो लोग वायलेंस कर रहे हैं उन्हें रोका जाए और फॉस्टर किया जाए हमारे आपसी अंडरस्टैंडिंग को। ठीक है, हमें खुद से समझ के चीज़ों को सॉल्व करना होगा, लोगों के भड़काए हुए बातों में आके नहीं। हमें खुद से आपस में भाईचारा बना के रखना होगा। ठीक है, ओके। द मिसचीफ, दो ये जो मिसचीफ है, तो मिसचीफ इज़ वैसे तो शरारत होती है। तो यहाँ पे मिसचीफ इज़ वो जो टीज़र के बारे में कहा गया था ना कि 32,000 वुमेन्स मिसिंग हैं, एग्जैगरेटेड क्लेम था, वो बढ़ाया चढ़ा हुआ। तो वो चीज़ वॉज व्रॉट बाय, वो बनाई गई है, किस चीज़ से बनाया गए हैं? बाय अ फॉल्स प्रोजेक्शन ऑफ रियलिटी। तो जो रियलिटी है उससे परे हट के, जो रियलिटी नहीं है, जो झूठ है, उसको प्रोजेक्ट करते हुए इसको बनाया गया है। इज़ बेस्ट अनडन, कोई भी चीज़ अनडन करना इज़ उसे पहले के जैसे कर देना। तो ये जो झूठी चीज़ बनाई गई है या फिर जो भी झूठी बात फैलाई जा रही है, इसे हम कैसे अनडन कर सकते हैं, कैसे सही कर सकते हैं? थ्रू एक्सपोजिंग द फॉल्सहुड। कैसे हम इसे सही करेंगे? आप एक्सपोज कीजिए। एक्सपोज करना इस लोगों के सामने ला देना। तो आप लोगों के सामने लाइए कि वो बात झूठ थी। 32,000 नहीं हुए हैं, कितने हुए हैं बता दो। 1,000 हुए हैं, 2,000 हुए हैं, या फिर ज़ीरो हुए हैं। अगर ज़ीरो वुमेन्स मिसिंग हैं तो भी आप बता दो कि देखो ये बात ना यहाँ पे झूठ कही गई थी इस फिल्म में। तो आप लोगों के सामने लाइए एंड द अंडरलाइंग मोटिव। और अगर कोई अंडरलाइंग उसके पीछे छुपा हुआ अगर लोगों का कोई मोटिव है कि हाँ हम फिल्म को बढ़ाना चाहते हैं इसीलिए ऐसा दिखाया गया है, ठीक है, तो ऐसा अगर कोई मोटिव है तो भी आप लोगों के सामने लाइए एंड नॉट थ्रू। तो हम कैसे उस फॉल्स प्रोजेक्शन को सही कर सकते हैं?
बाय एक्सपोजिंग, लोगों के सामने लाके उस झूठी बात को और उनके मोटिव को, और क्या चीज़ को ना करके थ्रू हैस्टी बैन्स, हैस्टीज जल्दी जल्दी, तो जल्दबाजी में आके केस करके बैन ला देना, तो ये चीज़ इस बात का सलूशन नहीं है। ठीक है, हम बैन करने से, बैन्स लेके हम प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर बैन आ जाएगा फिल्म पे, कोर्ट ओवरटर्न भी कर सकती है, लोग इस पे और ज़्यादा बात करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ऑथर ने पूरा देखो आर्टिकल के टाइटल से ही कहा था कि बैन इस चीज़ का सल्यूशन नहीं है, इस चीज़ का सल्यूशन है कि अगर कोई चीज़, अगर आपको लगता है कि झूठी बात कही गई है तो उस झूठ को लोगों के सामने लाइए। ठीक है, यही इस बात का सल्यूशन है, ना कि बैन्स। ठीक है, हैस्टीज जल्दबाजी से किए गए, जल्दबाजी में आके बैन कर देना, जल्दबाजी में डिसीजन दे देना, तो ये चीज़ सही नहीं है। आप झूठ जो बात हुई है उसे आप सामने लाइए। ठीक है, सो दिस वॉज इट फॉर द टुडेज आर्टिकल। ठीक है, ये वोकैबुलरी टेस्ट है, आपको इन वर्ड का मीनिंग कमेंट सेक्शन में लिखना है, इन दोनों वर्ड्स में कहाँ पे है एरर आपको मुझे बताना है। ठीक है, देखो बैन्स कैन बी ओवरटर्न बाय कोर्ट्स एंड दे टेंड टू इवोक क्यूरियोसिटी अबाउट द फिल्म एंड ऑफन एंड अप मेक पीपल फॉर्म ओपिनियंस ऑन इट्स कंटेंट। ठीक है, तो बताइए एरर कहाँ पे है। देखो मैंने आपको समझाते वक्त कहा था ना कि यू एंड अप डूइंग समथिंग, एंड अप के बाद आपका V1 प्लस ING आएगा, तो यहाँ पे मेकिंग आएगा। ठीक है, यू ऑफन एंड अप डूइंग समथिंग, तो यू ऑफन एंड अप मेकिंग पीपल फॉर्म ओपिनियंस ऑन इट्स कंटेंट। ठीक है, तो यहाँ पे V1 प्लस ING आएगा आपका। नेक्स्ट आपका ये अलग सेंटेंस है, ये आपका सेकेंड सेंटेंस है, इसमें कहाँ पे है एरर आपको बताना है मुझे। ठीक है, however rather than the law it is prudent assessment of the ground situation that helps them making a decision। ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ पे है एरर। देखो हेल्प के बाद मैंने आपको कहा था V1 आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो आपने यहाँ पे वर्ब का ING फॉर्म क्यों लगाया है, यहाँ पे ING फॉर्म गलत होगा, यहाँ पे आपका आएगा मेक। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे आपका मेक। ठीक है, द सिचुएशन दैट हेल्प्स देम मेक अ डिसीजन, तो ये दोनों भी चीज़ें मैंने आपको आर्टिकल को एक्सप्लेन करते हुए बताई थी। ठीक है, सो आर्टिकल की टोन को हम डिस्कस कर देते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया दोनों एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन का। और व्हाट वाज द टोन ऑफ द आर्टिकल, आर्टिकल की टोन देखो एनालिटिकल है। ऑथर ने सजेशन तो दिया ही है कि बैन्स इस चीज़ का सल्यूशन नहीं है, साथ ही साथ पूरा एनालाइज भी किया है सिचुएशन को कि कैसे मूवी के थिएटर्स ने डिसाइड किया, ओनर्स ने मूवी के, सॉरी यार, मल्टीप्लेक्स और थिएटर ओनर्स ने डिसाइड किया कि कुछ स्टेट्स में कि हम स्क्रीन नहीं करेंगे, कैसे सारी चीज़ें सामने आई, क्या कुछ हो रहा है, पूरा एनालाइज हुआ है। सो एनालिटिकल इज़ द टोन ऑफ द टुडेज आर्टिकल। ठीक है, okay, so hope you have liked it. If you liked it, don't forget to hit on the like button पे प्रेस कर दो। एंड अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है, यूज़फुल लगा आपको सेशन, तो इसे शेयर कर दो यार। ठीक है, देखा हमने कैसे कनेक्ट करके पढ़ा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखा, ग्रामर की चीज़ें मैंने आपको पर्पल कलर में बता के मार्क करके आपको सब कुछ बता दी, फिर हमने एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन भी किया। सो इन शॉर्ट मैंने कॉम्प्रिहेंसिव रखने का कोशिश किया, आपका ये सेशन कॉम्प्रिहेंसिव रहे। ठीक है, इफ़ यू लाइक्ड इट सो डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद अदर्स। उसके बाद आप सब्सक्राइब बटन पे भी प्रेस कर देना, उसके बाद सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना, ताकि सारे के सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। ठीक है, सो दिस वाज इट फॉर द टुडेज सेशन, अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।